قیامت اور انشاءاللہ ابھی ہماری گاڑی جاری ہے جنگ بدر. اگر آپ لوگ جاگتے رہیں تھکے نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ تفصیلاً شہدائے احد کے بارے میں عرض کروں گا، ورنہ مختصر بتا دوں گا، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی. اسلام کی پہلی جنگ ابھی ذکر شروع ہو رہا ہے. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، سن 2 ہجری 17 رمضان جمعے کا دن، 1000 کفار کا لشکر، 313 مسلمان. اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی مدد کی. سب سے پہلی مدد کیا آئی؟ بارش آئی. دوسری مدد ملائکہ، آقا کریم نے دعا مانگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سبز لباس میں فرشتے آئے، 2000 3000 4000 5000 ملائکہ آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اگر آج بھی مسلمان سیدھا ہو جائے اس کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے، رب کی مدد پہنچتی ہے. جس میں 70 کفار مارے گئے تھے، 70 کو مسلمانوں نے قید کیا تھا. جب وہ کفار بدر سے مکہ گئے سب اکٹھے ہوئے کہ مسلمانوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قید کیا، بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے. جو ہماری 1 سال کی تجارت کا نفع ہے نا، ہم اس سے جنگی ساز و سامان خریدیں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نعوذ باللہ. جب یہ خبر آقا کریم کو ہوئی نا کہ 3000 کفار کے لشکر نے سن 3 ہجری 14 شوال کو 3000 کفار کے لشکر نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا، جن کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے، 15 عورتیں، جنگی ساز و سامان. عورتیں اس لیے لے کر آئے، وہ گانا گاتی، ان کے دلوں کے اندر لڑائی کے لیے جذبات ابھارتی. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی نا کہ 3000 کفار کے لشکر نے تو مدینے کے گھیراؤ کر لیا ہے، آقا کریم نے آدمی جمع فرمائے جو پکے سچے 700 مسلمان جمع ہوئے. 300 آدمی عبداللہ بن ابی لے آیا. وہ عبداللہ بن ابی جو ظاہری کلمہ پڑھتا تھا مگر وہ منافق تھا. اللہ کے رسول نے مشورہ لیا جنگ جو ہے مدینے کے میدان میں لڑیں یا گھروں میں رہ کر کفار کے اوپر تیر اندازی کریں، پتھر برسیں. عبداللہ بن ابی کہنے لگا آقا گھروں میں رہ کر کفار کے اوپر تیر اندازی کریں گے، پتھر برسیں گے. مگر جو پکے سچے مسلمان تھے انہوں نے عرض کیا آقا جنگ جو ہے مدینے کے میدان میں لڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے سچے مسلمانوں کا مشورہ مانا، اپنے ساتھیوں کو لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے. عبداللہ بن ابی چند قدم چلا، اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ میرے جتنے ساتھی ہیں رک جائیں. کیا کریں؟ رک جائیں. تو اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا اور ہمارے آقا کریم ان 700 آدمیوں کو لے کر یہ احد کا پہاڑ، آپ کے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یہ احد کا پہاڑ. سب کا سبحان اللہ. السلام علیکم جبل احد، سب سلام کریں. یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ جنت کا پہاڑ ہے، جنتی ہے پہاڑ ہے. اگر پتھر نبی سے محبت کرے وہ تو جنتی کہلائے. ہر عالم، ہر مفتی، ہر حاجی کہے یہ جنتی ہے. نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج دی، نہ خیرات کی ہے. ہر عالم، ہر مفتی، ہر پیر، ہر حاجی کہتا ہے یہ جنتی ہے. کسی سے بھی پوچھ لیں کیوں جنتی ہے؟ اس نے نبی سے محبت کی. اگر پتھر اللہ کے رسول سے محبت کرے وہ تو جنتی کہلائے. انسان ہو، مسلمان ہو، نبی کا امتی ہو، دل میں عشق مصطفیٰ ہو، کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی جنتی ہے. دعا مانگا کریں سوز صدیق و علی الحق طلب، ذرہ عشق نبی الحق طلب. یا اللہ حضرت ابو بکر صدیق والا سوز عطا فرما، حضرت عمر فاروق والا، حضرت عثمان غنی والا، حضرت علی المرتضیٰ والی محبت عطا فرما. جیسے آقا کریم سے محبت کرتے تھے ایسی محبت عطا فرما. تو آقا کریم ان 700 آدمی کو لے کر اس احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے. وہاں ایک چھوٹی پہاڑی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے جس کا نام جبل رومات ہے. اس پہاڑی پہ اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا. حکم فرمایا میرے صحابہ جب تک میں نہ کہوں یہ مورچہ خالی نہ چھوڑنا.
ये दरा खाली न छोड़ना, इससे नीचे मत उतरना। मुख्तसर जंग का आगाज हुआ, जंग शुरू हुई, मुसलमानों को फतेह नसरत हुई, कामयाबी हुई। साहबा ने देखा नीचे वाले साहबा माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो मोर्चा साहबे किराम छोड़कर नीचे उतरने लगे। 40 साहबा, हजरत मुसअब बिन उमैर ने आवाज दी, ऐ मुसलमानों नीचे ना उतरो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूँ ये मोर्चा खाली ना छोड़ना। मगर वो नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद छुपे हुए थे, उन्होंने पीछे से दोबारा हमला कर दिया। कितना नुकसान हुआ, 70 साहबे किराम शहीद हो गए, जिसमें हमारे आका करीम के चचा प्यारे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। उनके बारे ये आप जंगले वाली चार दीवारी देखें, ये सामने नजर आ रही है, ये खैमे के बाद जंगले वाली चार दीवारी है, ये खैमा लगा हुआ है, इसके बाद जंगले वाली चार दीवारी, इसके अंदर शोहदा आराम फरमाए हैं। हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, हिंदा नामी औरत ने आपका कलेजा निकाल कर चबाया, और वो हिंदा नामी औरत कुछ अरसे के बाद मुसलमान हो गई। जब आका करीम के सामने आती, आका करीम फरमाते, ऐ हिंदा तो मेरे सामने नहीं आया करो, मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब तूने मेरे चाचा जी का कलेजा चबाया था। अल्लाह के महबूब ने इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, माफ फरमा दिया, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने। तो अगर आपको बार बार मक्का मदीना आना है, इसी काफिले के साथ आना है, तो यहाँ दुआ करके दें, या अल्लाह इन शुहदा के सदके हमें हर साल हर महीने, क्योंकि हमारे मांगने में कमी है, उसके खजाने में कमी नहीं है, हर महीने में इसी काफिले के साथ आने की तौफीक अता फरमा। तो सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम सय्यदना हजरत अमीर हमजा, अस्सलामु अलैकुम चाचा नबी पाक, अस्सलामु अलैकुम असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम जमीए साहबा। जब ये सलाम करेंगे ना, तो ये शुहदा हम सब के लिए तां क़यामत तक दुआएं करते रहेंगे सलामती की। शहीद जिंदा होते हैं, शहीद आप नीचे उतर के बिल्कुल सामने जाएंगे। 1 मिनट, जंगले वाली चार दीवारी है, बोर्ड लगे हुए, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आप देखेंगे सामने काले स्याह पत्थर रखे हुए हैं, उसमें नबी के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा, हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्लाह जहश, हजरत शमश बिन उस्मान, ये 4 साहबा। फिर सामने नजर दौड़ाएंगे, छोटी चार दीवारी है, उसमें 66 साहबा आराम फरमाए हैं। ये सलाम अर्ज करके 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। यहाँ पे 15 से 20 मिनट का टाइम है, वक्त की पाबंदी। अगर 5 मिनट गाड़ी इंतजार करेगी, उस पहाड़ी पे नहीं चलना है आप लोगों ने, जिस पहाड़ी पे लोग हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं इस पहाड़ी के ऊपर शुहदा का खून है, जहाँ शुहदा का खून है वहाँ हमारे पाँव लगे बेअदबी है। शुहदा को सलाम अर्ज करके वापस आइए, दुआ करनी है बीमारों के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हजरत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। सब हजरात आ जाए, नीचे उतर के बिल्कुल मस्जिद फतह खुली होगी, आप वहाँ जाके नवाफिल पढ़ सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं रब से, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने दुआ मांगी थी 3 दिन। आखिरी दिन कौन सा था? बुध का दिन था। ज़ुहर से लेकर असर तक जब दुआ मांगी रब आका करीम ने, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाओ मेरे रसूल से कह दो परेशान ना हो कि 10,000 कहाँ 1500 कहाँ, परेशान ना हो, ये जंग तुम्हें फतह मिलेगी, आपकी कामयाबी है। तुम अभी ऐसा करो कि मक्का भी चले जाओ, मक्का भी फतह हो जाएगा। तो फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वहाँ दुआ मांगी, अभी भी जो यहाँ के रहने वाले सऊदी हजरात हैं या हमारे पाकिस्तान से लोग आते हैं जिन्होंने तारीख पढ़ी है, मालूमात है, जब वो मदीने में आते हैं ना, बुध के दिन ज़ुहर की नमाज हरम में, और हरम में ज़ुहर की नमाज अदा करके फिर मस्जिद फतह पे वहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटे रब की बारगाह में दुआएं मांगते रहते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आपने मस्जिद किबलतैन देखी। अच्छा, इस जंग का जिक्र, ग़ज़वा खंदक का जिक्र कुरान में सूरह अहज़ाब 21वां पारा, 21वें पारे के अंदर, सूरह अहज़ाब के अंदर इसका जिक्र है, ग़ज़वा खंदक का। और आपने मस्जिद किबलतैन देखी, इसका जिक्र कुरान में सूरह बकरा 2 पारा। और मस्जिद कुबा का जिक्र मैंने बताया था, मस्जिद कुबा का जिक्र कुरान में कौन से पारे में नहीं बताया था ना। मस्जिद कुबा का जिक्र कुरान में सूरह तौबा 10वें पारे से शुरू होती है,
11वें में मस्जिद कुबा का जिक्र आता है। सब कहना सुभान अल्लाह। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी गई, जिसकी बुनियाद परहेजगारी के ऊपर रखी गई। सरकार ने फरमाया, ऐ सहाबी कलसुम यहाँ मस्जिद तामीर न करें। सहाबी कलसुम बिन हदम ने, जहाँ ये मस्जिद कुबा है ना, जहाँ हम लोगों ने नवाफिल पढ़े थे सबसे पहले, तो यहाँ बाग था, खजूर सुखाने की जगह थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबी कलसुम यहाँ मस्जिद तामीर न करें। तो वो कहने लगे, आका ये आप ही की मिल्कियत है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ऐ मेरे साहबा जाओ पत्थर लेकर आओ। साहबा पत्थर लेकर आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाते ना। साहबे किराम दौड़, आपकी कमर झुक जाती, साहबे किराम दौड़ कर आते, अर्ज करते, आका आप पत्थर ना उठाएं, हम उठाएंगे। आका करीम ने फरमाया, मुझे भी सवाब की जरूरत है, मुझे भी मस्जिद के अंदर हिस्सा मिलाना है। तो एक सहाबी रसूल को साहबा ने देखा, उसने 2 पत्थर उठाए हुए हैं। तो किसी ने सवाल किया, तुमने कमजोर हो और 2 पत्थर क्यों उठाए हुए हैं, आपकी कमर झुकी हुई है। वो कहने लगे, एक तो मैंने अपने हिस्से का उठाया हुआ है, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का उठाया हुआ है। ये साहबा की मोहब्बत थी और मस्जिद कुबा तामीर हुई और आपने मस्जिद की किबलतैन के अंदर नवाफिल अदा किए। सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात तो पढ़ चुके थे ना, 2 रकात बाकी थी। सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह ताला को किबला चेंज करना था, अल्लाह फरमाते थे, जिब्रील जी रब्बे जली सब्र कर, मेरा रसूल 2 रकात पढ़ चुका है, 2 रकात तो बाकी हैं, ये सलाम फेर ले, फिर चले जाना, जाकर मेरे रसूल से कहना जब आप मगरिब की नमाज अदा करें, खाना काबा की तरफ मुंह करके अदा करें। हो सकता था ना, क्यों नहीं हो सकता था, हो सकता था, मगर नमाज में क्यों किया गया, नमाज की हालत में क्यों किया गया। वरफाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने फरमाया, महबूबा मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, तेरी शान को बुलंद कर दिया। शिकिरो बोलो कि वो फरमाते हैं, खुदा की रजा, खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। दोनों जहां अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब की रजा चाहता है, अपने मोहम्मद की रजा चाहता है। वो कैसी रजा चाहता है, किबले भी चेंज कर देता है, मिट्टी में भी शिफा रख देता है, पत्थरों से भी कलमा पढ़वा लेता है। तो रब का फरमान है ना, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदा, जब तू मेरी इबादत करते करते, जब तू मेरी इबादत करता है, मुझे याद रखता है, फिर क्या होता है, जब तू बोलता है तो तू नहीं बोल रहा होता, मैं बोल रहा होता हूँ। जब जिस हाथों से तू काम कर रहा होता है, तू नहीं कर रहा, मैं कर रहा होता हूँ। ये हदीस कुदसी किसी कहते हैं, रब के फरमान को कहते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत फरमाए। और हर इंसान ये दावा करता है, बात आ गई है तो मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, कोई है, अमर है, बकर है, मर्द है, औरत है, जिसने कलमा पढ़ा है वो यही कहता है, अरे मैं अल्लाह से भी डरता हूँ, अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ। दावे करते हैं ना हम। तो जब दिन के अंदर 5 मर्तबा रब का पैगाम आता है हमारे घर के अंदर, कानों में आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ। सुनते हैं ना अजान, जब ये अजान हो रही होती है ना, तो हम मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाते हैं, आगे मुअज्जिन कहते हैं, हय्या अलल फलाह, तुम्हें तरक्की मिलेगी, दुनिया की भी और आखिरत की भी। हम वही सुन के चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमें तरक्की नहीं मिलती। हम फिर क्या करते हैं, किसी के पास चले जाते हैं, अम्मा मौजूद है घर में, बाप घर में मौजूद है, किसी आलिम की चौखट पे गए, किसी पीर की चौखट पे गए, हमारे लिए दुआ करो, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। अरे तुम्हारा बड़ा पीर, तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हारी माँ बैठी है, माँ से दुआ कराओ। जब माँ दुआ करेगी फौरन अर्श तक पहुंचेगी,
जब दुआ बात करेगा फौरन आसमां अर्श तक पहुंचेगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। एक सहाबी रसूल, बात आ गई है, आका मैं उम्रे के लिए जाऊं, तेरे घर में माँ है? जी। सरकार ने फरमाया, बोला तेरी माँ बुढ़िया है, उसकी खिदमत कर, तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। तो अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देख, अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से देख, तुझे हज उम्रे का सवाब मिलेगा। तो वही सहाबा भी तो सहाबा थे, कहने लगे आका दिन में मैं अपने वालिदैन को 70 मरतबा मोहब्बत की निगाहों से देखूं तो क्या मुझे 70 हज उम्रों का सवाब मिलेगा? सरकार ने फरमाया जी हाँ, 70 हज उम्रों का सवाब मिलेगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप लोगों के सामने कुरान की आयत पढ़ी थी, 5वां पारा, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, अपनी मखलूक से मेरा रब मुखातिब हुआ, फरमाया ऐ लोगों, जब अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठो, क्या कर बैठो? जुल्म का मकसद गुनाह कर बैठो। जुल्म है जब हम गुनाह करते हैं, अपने जिस्म पे जुल्म करते हैं, जब अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठो। ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, जाओ मेरे रसूल के पास, वहां जाकर मेरे से इस्तगफार करो, मेरे से तौबा करो। जब वहां जाकर मेरे से इस्तगफार करोगे ना, मेरे से तौबा करोगे तो क्या होगा? नबी करीम वसल्लम तुम्हारी सिफारिश फरमा देंगे, तो मैं रहीम और करीम हूं, मैं जरूर बख्श दूंगा। तो नबी करीम वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मंजर कबरी वजबत लहू शफाती इला यौमिल क़ियामा। फरमाया जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, मुझ पर वाजिब है, क़यामत के दिन में उसकी शफात फरमाऊंगा। शफात हुई एक बार। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? आप सब खुश नसीब हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने आका करीम का रौज़ा देखा, गुंबद खजरा देखा, आका करीम की कब्र अनवर देखी, तो वो ये ना कहे कि मैंने आका करीम का रौज़ा देखा, वो ये कहे कि मैंने नबी करीम से मुसाफा किया, मुलाकात की। वो हजरत इमाम मालिक जिन्होंने सारी जिंदगी मदीने में गुजारी, मदीने की गलियों में नंगे पांव चला करते थे, उनका अदब था। आज हम क्या करते हैं? हम पान खा रहे होते हैं, कुछ खा रहे हैं, नीचे थूके फेंक रहे हैं। हजरत इमाम मालिक मदीने की गलियों में नंगे पांव चला करते। लोग सवाल करते, ऐ इमाम मालिक, आप मदीने की गलियों में नंगे पांव क्यों चला करते हैं? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों, जहां पर अल्लाह के रसूल के कदम लगे, जहां नबी करीम वसल्लम के कदम लगे, जिस गली से अल्लाह के रसूल गुजर जाए, अल्लाह तो फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो शहर की कसमें उठाता है, मैं वहां जूता पहन कर चलो, मेरा ईमान नहीं मानता। तो मक्का भी नबी का शहर, मदीना भी नबी का शहर, और जिस गली से नबी करीम वसल्लम गुजर जाते ना, उस गली में खुशबू होती थी। सहाबे किराम को पता चल जाता कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे हैं। मुहद्दिस हक दहलवी ने तारीख मदीने के अंदर लिखा है, शायद आपने तारीख पढ़ी होगी मुहद्दिस हक दहलवी की। उन्होंने लिखा है मदीने पाक के अंदर जो एक रात है वो 1000 लैलतुल कदर की रात से एक रात अफजल है। ये मदीने की शान है। देखें, आका करीम जब मक्का से मदीने में आए थे ना, हिजरत करके, मक्का तो फतह हो गया था ना, आप दोबारा मक्के में रह सकते थे ना, क्यों नहीं रहे? फिर मदीने में आ गए। इसलिए जब आका करीम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, ऐ मेरे प्यारे रसूल मक्का से हिजरत फरमाए, आपके बहुत दुश्मन हो चुके हैं, तो आका करीम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह, जो तुझे महबूब शहर हो ना, जो तुझे पसंद शहर हो, जिससे तू मोहब्बत करता है, मुझे उसी शहर में ले जा। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी शहर में हुक्म दिया था, तो इस शहर से मेरा रब भी मोहब्बत करता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, दोबारा आका करीम मदीने में आ गए। इंशाअल्लाह अभी हम जा रहे हैं मदीने के बाग में। मदीने का बाग देखेंगे ना? आवाज कम आ रही है, जाग रहे हैं, सो गए? माशाअल्लाह। मदीने का बाग अगर किसी के ज़हन में आए, खजूरों का बाग, आमों का बाग नहीं, खजूरों का बाग, अगर किसी के ज़हन में है ये किसी सहाबी का बाग है, नहीं,
मदीने का बाग है, हरम की हदूद के अंदर है। और अजवा वो खजूर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे आगे नाश्ता भी करेंगे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। और सीधे हाथ पे देखिए, ये जो इलाका है ये जहदिया के इलाका है। यहाँ थी मस्जिद कातबिया जिसको शहीद कर दिया। मस्जिद कातबिया 99 मसाजिद थी, 99 मसाजिद थी। तारीख में आता है आका करीम अगर किसी सहाबी के घर चले गए, उसने मस्जिद तामीर की। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, साहबा ने वहाँ मस्जिद तामीर कर ली। 99 मसाजिद थी, कुछ को शहीद कर दिया, कुछ बाकी है। यहाँ थी मस्जिद कातबिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने 2 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि जो कुरान पाक पत्तों पे लिखा हुआ है, जो कुरान पाक चमड़े पे लिखा हुआ है, उसको इकट्ठा करें। वो कहने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक, हम तो ये काम करें मगर हमारे घर का खर्चा कौन उठाएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके घर का खर्चा मैं उठाऊंगा। बाद में मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम रखा मस्जिद कातबिया, जिसको शहीद कर दिया। काफी मसाजिद शहीद हुई। आपने मस्जिद सबक की जगह देखी थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में मौजूद है। रात का वक्त है, 14वीं का चांद चमक रहा है। अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह, हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले मस्जिद सबक के पास पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा अपने हुजरे से निकले, यही घर जहां सरकार आराम फरमाए। अम्मा आयशा तेजी से चले, नबी करीम अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता चले, जैसे आका करीम आहिस्ता आहिस्ता चले। अम्मा आयशा तेजी से चले। सबसे पहले अम्मा आयशा मस्जिद सबक के पास पहुंच गए। फिर आका करीम ने फरमाया, आयशा तुम जीत गए। अम्मा आयशा ने फरमाया, मैं नहीं जीती, आप जीत गए। ये मोहब्बत थी। फिर आका करीम ने फरमाया, आयशा अभी दौड़ लगाते हैं। जो पहले अपने हुजरे में पहुंचे, फिर दौड़ लगाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने अपनी घरवाली को बराबर रखा, नीचे नहीं दिखाया। आज हम क्या करते हैं, या अल्लाह हमें आका करीम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। और आपने मस्जिद बिलाल देखी, वो हजरत बिलाल के नाम की मस्जिद। अगर किसी के ज़हन में आए क्या यहाँ हजरत बिलाल का घर था? नहीं, हजरत बिलाल का जो घर था वो मस्जिद नबी में आ गया। जो यसरफ पहला था, मदीना था, वो पूरा मस्जिद नबी में आ गया। वो बिलाल, हजरत बिलाल जब मक्का फतह हुआ, 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, 10 रमजान को आका करीम अलैहिस्सलाम यहाँ से रवाना हुए, 20 हिजरी को मक्का फतह हुआ। आका करीम ने फरमाया, बिलाल जी या रसूल अल्लाह, खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ जाओ, आदान दो। हजरत बिलाल खाना काबा की छत के ऊपर चढ़े। वह बिलाल तेरा मुकद्दर, जैसे खाना काबा की छत के ऊपर चढ़े, दिल में ख्याल आया, ऐ बिलाल तू तो खाना काबा की छत के ऊपर है, किस तरह मुंह करके आजान देगा? यही सोच रहे थे। आका करीम ने फरमाया, ऐ बिलाल तुम क्या सोच रहे हो, मेरी तरफ मुंह करके आजान दो। तो बिलाल ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके आजान दी। जैसे ही आजान दी तो आशिक की रूह बोल उठी। आपने आशिक के रसूल मगर बैठी खामोश है। आशिक की रूह हर मकाम पे बोल उठती है। वो आप लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, हाजियो, जिसने मक्का मदीना देख लिया वो हाजी बन गया। फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रौदा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रौदा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सारी कायनात देखती है काबे की तरफ, जो काबे वाला है देखता है गुंबद खजरा की तरफ। बाएं हाथ पे देखो, उल्टे हाथ के ऊपर वादिये वतहा, खाके शिशा का मैदान। अभी तो कह देना सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल ने यहाँ कदम नहीं रखा था, क्या था? सबने तारीख पढ़ी होगी। यसरब इसका नाम था, बीमारियों का घर था, चंबल कोड़ की बीमारी थी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना, मक्का से यसरब के अंदर हिजरत फरमाकर तशरीफ ले आए,
12 रबीउल अव्वल के दिन सरकार पहुंचे थे। सन 2 हिजरी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसका नाम रखा मदीनतुल मुनव्वरा। मदीना के माने शहर, मुनव्वरा के माने रोशनी वाला शहर, नूर वाला शहर। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम रखा तैबा। उलमा ने इस शहर के 100 नाम लिखे हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम पहुंचे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदीने की तुराब में शिफा, तुराब कहते हैं मिट्टी को, फरमाया मदीने की तुराब में शिफा, मदीने की गुबार के अंदर भी शिफा, मदीने की हवा के अंदर भी शिफा। उल्टे हाथ में देखें, ये सब्ज कलर की ये गाड़ियां लगी, ये मदरसा है, इमारत है, नजर आ रही है। यहाँ पे वो कुआं है जिस कुएं के पानी से सरकार को गुस्ल दिया गया था, वीर वर्ष। और आका करीम ने फरमाया अंसारी को, यहाँ के रहने वाले अंसारी, फरमाया अंसारियों जिनको चंबल कोड़ की बीमारी है, यहाँ से मिट्टी उठाओ, अपने जिस्म के ऊपर लगाओ। सामने ऐसे किया, अल्लाह ताला ने सबको शिफा अता फरमाया। क्योंकि आका करीम ने फरमाया मदीने की तुराब में शिफा, मदीने की गुबार के अंदर भी शिफा, मदीने की हवा में भी शिफा। जब आका करीम मदीने से बहर जाते, जब उहद पहाड़ नजर आता, मदीने पाक की दरों दीवार नजर आती, आका करीम अपनी सवारी को तेज कर देते, फरमाते हैं मेरे साहबा अपने मुंह मुबारक से कपड़ा हटा लो, मदीने पाक की ठंडी ठंडी हवाएं खाओ, क्योंकि मदीने की गुबार के अंदर भी शिफा है। फरमाया दुआ मांगा करो, या अल्लाह जब भी हमें मौत आए मदीने पाक की सरजमी के ऊपर मौत आए। अभी वो मस्जिद आ रही है, किसी मस्जिद की बुनियाद कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई पीर रखता है। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तमाम अंबियाओं की अंबिया, तमाम नबियों के इमाम अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। मस्जिद कुबा, सबको सुभान अल्लाह जिसकी नजर पड़ी है। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरा उम्मती अपने घर से, जैसे अभी आप आए, अपने घर से वजू करके आएगा, मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकात अदा करेगा ना, उसे 1 उम्रे का सवाब मिलेगा, वो मकबूल और कबूल उम्रे का सवाब होगा। आपने उसका अदा हो गया, लेकिन इल्म की कमी की वजह से हुजाजे कराम बस किसी की सुनते नहीं, बोलते मैं ही सबसे बड़ा हाजी हो गया हूँ, मैं ही सबसे बड़ा माशाल्लाह उम्रे वाला हो गया हूँ, कोई किसी की नहीं सुनेंगे। एक मिसाल, रमज़ान से पहले हमारे लाहौर के एक दोस्त थे, मेरे साथ रह के गए 6 साल। उनका मोहल्ले का दोस्त आया हुआ था, उन्होंने बोला इनको फलां चीज़ें दे दीजिएगा। हज़रत साहब मैंने उसको चीज़ें देने के लिए गया। अब 2-3 दिन पहले उससे रब्ता करूँ, कह रहा मैं रोज़ाना उम्रा कर रहा हूँ। जब वो जाने लगा उसकी हालत देखी, इतने इतने बड़े बाल थे। तो मैं उनसे सवाल किया आप हलक नहीं करवाया? अब उसका अंदाज देखिए, सुनने में आप दिल भी खुश हो जाएगा, लेकिन रोना भी आता है। वो कैसे? क्योंकि हम इल्म नहीं सीखते हैं उम्र हज का। अब उसने क्या कहा, क्योंकि मैंने एक मशीन रखी हुई, उसके 6 नंबर है। कितने नंबर है? पहले मैंने उम्रा किया है, उसको 6 लगा दिया, दूसरा उम्रा किया है 5 नंबर लगा दिया। ये तो हमारी हालत है। माशाल्लाह अच्छा खासा वो शख्सियात थी, लेकिन देखिए हमने सफर इतना किया, 15 दिन 20 दिन अपने पता नहीं कैसे एक तिजारत से फारग हुए, या ऑफिस में काम करते हम छुट्टी मांगते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसे है ना। फिर हम इतना दिन निकाले, फिर वो भी इतना वक्त, दिन, पैसा सब जाया हो जाता है। अब मैंने उसको मशवरा दिया, मैं आप पर तो ये यूं कुफारा आ गया है। जब बोला ना कुफारा आ गया हूँ, हला बोलता ये तो हो नहीं सकता। तो फिर उसने पीछे राब्ता किया, लेकिन मेरे मौजूद होते राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान में गया, फिर वहाँ से उसका फ़ोन आया मुझे, बोलता हाँ मुफ्ती साहब ने बताया पर दम आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? दम आ चुके हैं। फिर हम गरीब बन जाते हैं, मस्कीन बन जाते हैं, क्योंकि हम दम दे सकते 500 रियाल का, 600 रियाल का, 700 रियाल का एक बकरा ज़िबा करके मसाकिन को खाना खिलाना होता है। फिर मोहतरम कोशिश करें इल्म दीन सीखें, आमीन इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके राइट साइड पर ही आपको बाहर देखेंगे, आपको रोड भी नज़र आए होंगे। ये जो रोड है ये पैदल वाला हाजियों का रोड है। हाजी इकराम मिना से इस रोड से पैदल अरफात में आते हैं, और इसी रोड से पैदल मुज़दलिफ़ा मिना की तरफ जाते हैं। आपने हाजी से सुना होगा
जो हाजी पैदल चलते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं। हाजी पैदल चलने वाले जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर थी इसका फासला तो है मिना से अरफात का, लेकिन जब गाड़ियों में बैठते हैं तो घंटे लग जाते हैं। गाड़ी के साथ गाड़ी मस्त होती है। सन 2010 के अंदर पहला हज किया, मेरे ही मोहल्ले का आया हुआ था। मैं उनसे सवाल किया मैं कहाँ पर है, कह रहा मैं अभी मुजदलफा में बैठा हूँ। अल्लाह के बंदे मुजदलफा मीना साथ मिला, बोलता मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। तो उससे पूछा आपने कंकर कब मारा है, बोलता हम गाड़ी वाले बोला इंतजार करते रहे। तो मेरे मोहतरम कोशिश करें, इल्म सीखें, इल्म के बगैर गुजारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन रोडों से आपने एक वीडियो के जरिए व्यू भी देखा होगा, जब हाजी पैदल चल कर आते हैं तो एक सफेद चादर बिछी होती है। मेरे मोहतरम क्या वो रौनकी होती है, क्या वो रहमतें हाजियों पर बरस रही होती है। ये 3 रोड ये भी आ रहे हैं, 3, 1, 2, 3, 4, और आपकी लेफ्ट साइड की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नंबर आके फिर दोबारा ज़ियारत कर रहे हैं। और दुआ भी करें अल्लाह ताला हम सबको इसी साल हज की सआदत नसीब फरमाए, और इंशाअल्लाह हम हज के दिन इस मस्जिद की भी ज़ियारत करेंगे। मेरे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब पैदल की फजीलत सुन लेते हैं। माशाअल्लाह हमारे इमाम अहले सुन्नत जब शहर मक्का से मस्जिद हराम से चले तो आपने एक कदम कदम गिनती करके बता दिए यहाँ से अरफात तक इतने कदम है। तो मेरे मोहतरम उलमा मुहद्दिस लिखते हैं जो पैदल चलता है उसको एक एक कदम पर 7-7 करोड़ नेकियां मिलती हैं, क्योंकि पैदल चलना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया की सुन्नत है। क्या है? अच्छा फ्रंट में 4 छोड़ के पीछे आप बताइएगा, एक सुन्नत हदूद हरम के अंदर अमल करेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? 1 लाख तो एक नेकी करेंगे तो 1 लाख सवाब मिलेगा, लेकिन एक सुन्नत पर अमल करेंगे कितना सवाब मिलेगा? 1 करोड़ शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने करोड़ शहीदों का हदूद हरम के अंदर। आप और हम सब कोशिश करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत अपनाएं, इंशाल्लाह अपनाएंगे। आगे जो ज़ियारत आ रही इसका नाम नहर ज़ुबैदा है। नहर ज़ुबैदा मेरे मोहतरम नहर सबको पता है इसके अंदर पानी चलता है। ज़ुबैदा ये मलका ज़ुबैदा थी, ये खलीफा हारून रशीद की ये बीवी थी। मेरे मोहतरम फरमाती अल्लाह की वलिया थी, बहुत सदका खैरात करती थी। अच्छा सदका खैरात करना हम सुनेंगे, वो तो बादशाह थी, बादशाह की बीवी थी, मलका थी। लेकिन उलमा फरमाते हैं मलका होने के बावजूद भी कसरत से जिक्रुल्लाह करती थी, कसरत से नफल इबादत करती थी, कसरत से नफली रोजे रखना। और ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह की ये तलाश किया करती थी, कहीं से मिल जाए मैं अपने लिए दुआएं मगफिरत कर रहा हूँ। देखिए इतना काम करने के बावजूद फिर भी हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह को तलाश किया करते थे। मेरे मोहतरम मुख्तसर सा, क्योंकि इसको एक ख्वाब आता है, उसकी ख्वाब की ताबीर अहले इल्म से पूछते हैं। तो अहले इल्म कहते हैं अल्लाह की बंदी है, अल्लाह के वली, आप शहर मक्का की तरफ चले जाएं, वो अल्लाह ताला आपसे कुछ काम लेना चाहता है। मेरे मोहतरम यही मलका ज़ुबैदा उस दौर में शहर मक्का में आती तो हज का मौसम होता है, साथ साथ हज की सादत आती, मीना अरफात मुजदलफा और मीना के अंदर वकूफ करती। उस वक्त पानी की कमी थी, तो पानी की कमी की वजह पर हाजियों पर मुश्किल हो रहा था, हाजियों की डेथ हो रही थी। मेरे मोहतरम वही नहर ज़ुबैदा आपके राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ ये 2 दीवार पत्थरों वाली आपको ये दीवार दिखाई देगी। तो ये मेरे मोहतरम ये नहर आज से 800 साल पुरानी नहर है। मेरे मोहतरम उस वक्त जब पानी देखा कमी है, हज मुकम्मल हुआ, मुल्क इराक की तरफ वापस पलटी, शोहर से मशवरा किया गया तो वहां से नहर खुदवा कर हुजाज कराम के लिए यहाँ पर पहुंचाएगी। मेरे मोहतरम हुजाज कराम 750 साल तक हज के लिए आते रहे और इस नहर से पानी इस्तेमाल करते रहे और मलका ज़ुबैदा को दुआओं से बोले तो सही नवाजते रहे। मेरे मोहतरम इस चीज से पता चला, क्योंकि जो मसाजिद बनाता है बोले इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे इंशाल्लाह, जो मदारस की खिदमत करता है वो दुनिया से चला भी जाता है तो उसको बाद में फायदा। इसकी मिसाल ये ले ले, देखिए 750 साल तक हाजी हज के लिए आते रहे, इस नहर से फायदा उठाते रहे और मलका ज़ुबैदा को दुआओं से नवाजते रहे। तो इसीलिए उलमा कहते हैं क्योंकि ज्यादा सदका खैरात निकालें, लेकिन आज उलमा की तनख्वाहें भी कम है, अफसोस से कहना पड़ता है। तो मेरे मोहतरम आज उलमा हमारे हर वक्त हर लम्हा हमारी रहनुमाई करते हैं, लेकिन सबसे हम बदनाम उलमा को करते नौज़ बिल्लाह। लेकिन ऐसा कलमा मत बोलिए, ये ना हो हमारी पहली वाली भी नेकियां हम हाथ से हाथ धो बैठे। मेरे मोहतरम उलमा फरमाते हैं इसकी मिसाल ये है,
मेरे मोहतरमा फरमाते दो चीजें फायदा पहुंचाती है आपको। कौन सी? एक तो अपने हाथ से सदका खराज करके चला गया, दूसरी उसकी औलाद, वो नेक अच्छे काम करेंगी, उसकी रूहें खुश होंगी। आप बताइए मेरे मोहतरमा, एक नमाज पढ़, आपकी लेफ्ट साइड की तरफ ये मेट्रो भी चल रही है, आपको दिखा रही है, हम हाजियों को लेकर जाती हूँ, आप इसके अंदर सफर कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेट्रो है, ये जिनको ट्रेन का शेड्यूल मिलता है वो इस मेट्रो ट्रेन के ज़रिए मिना से अरफात आते हैं, अरफात से मुज़दलिफ़ा और आगे मिना की तरफ बढ़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे आपको मैदान मुज़दलिफ़ा का स्टेशन में आएगा, नज़र आएगा। ये मैदान मुज़दलिफ़ा यहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाता है, ये आपको वाइट कलर का, ये मैदान मुज़दलिफ़ा का हदूद यहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाती है। ये कोने में बोर्ड भी लगा हुआ है मुज़दलिफ़ा का, बिदाया मुज़दलिफ़ा, यहाँ से मुज़दलिफ़ा स्टार्ट शुरू हो जाता है। ये चारों अतराफ, अच्छा यहाँ पर आपको खैमे नज़र नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाजी को हुक्म है खुले आसमान तले 3 नमाजें पढ़ें। मुज़दलिफ़ा के अंदर ठहरना तो वाजिब है, और यहाँ पर 3 नमाजें खुले आसमान तले, यहाँ पर 3 नमाजें पढ़े, इसीलिए खैमे नहीं लगाए। हाजी के सर और आसमान पर कोई खला ना हो, कोई पर्दा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर मेरे मोहतरम 2 मीनार वाली मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद मशारिल हराम, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ही के दामन में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ यहाँ पर क्या फरमाया, और साथ इरशाद फरमाया पूरा मुज़दलिफ़ा क़याम का है, जहाँ आपको जगह मिले आपका वकूफ़ माना जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ मस्जिद मशारिल हराम है। यहाँ से जब हमारी गाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ पर हदूद, ये हदूद हरम की ये बाउंड्री लगी है। मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए माशाल्लाह काफिला रवा दवा है, क्योंकि मिना और मुज़दलिफ़ा हदूद हरम के अंदर आता है। मैदान अरफात हदूद हरम से तकरीबन कम 23 किलोमीटर हदूद हरम शुरू हो जाती है। या हम मदीना मनवरा रोड की तरफ जाएंगे तो मस्जिद आयशा मशहूर मारूफ पॉइंट है, वो भी हदूद हरम से बाहर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मुकरमा की ज़ियारत भी करेंगे और इंशाल्लाह मस्जिद जहराना भी जाएंगे। मस्जिद जहराना भी हदूद हरम से बाहर है। अब देखिए, एक तो हम उम्रा कर लिया, कहाँ से? या हम मदीना मनवरा से आए या हम पाकिस्तान से आए, तो ये 2 मिकातें पड़ती हैं। एक का नाम है जुल्हुलैफा, अब यार अली भी कहते हैं, दूसरी मिकात है या लमलम। हम इस मिकात से क्रॉस करके शहर मक्का मुकरमा की तरफ आएंगे तो हम एहराम बांध कर आएंगे, उम्रे की नियत करके आएंगे। अब दूसरे ख्वाहिश होती है हाजी की या मोतमरीन की, मैं दूसरा उम्रा करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बताते भी हैं, क्योंकि उसको चाहिए ज़्यादा अफजल काम है उम्रा करे। क्या करे? या इतनी उसकी हिम्मत ताकत नहीं, सैयद ना दे तो तवाफ़े काबा करे, या इतनी भी हिम्मत ताकत नहीं तो नफली इबादत करे, ज़िक्रुल्लाह करे, या सदका खराज भी करे, और इंशाल्लाह करेंगे, या नफली रोज़ा भी रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नफली रोज़ा रखेंगे तो 1 लाख नफली रोज़े का सवाब है।
یہ شہر مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے. لیکن کچھ وقت ایسا بھی آئے گا احمد بھائی ہمیں کہیں گے آج ہم ظہر یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ہمارا قافلہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوگا, تو ہم وقت مانگے کہ ہمیں وقت نہیں ملے گا. تو کوشش کریں آج ہمارے پاس وقت ہے, ٹائم ہے, اس وقت اور ٹائم کی قدر کریں. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات, زیادہ سے زیادہ الحمد. دیکھیں ہماری گاڑی حدود حرم سے باہر نکل چکی ہے. یہاں پر ہم ایک مرتبہ ذکر اللہ کریں گے تو ہمیں ایک ہی ذکر اللہ کا ثواب ملے گا. کیوں؟ وہ 1 لاکھ کی حدود حرم کے اندر فضیلت ہے. تو کوشش کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک صلوات و سلام پڑھتے رہیں. اچھا واقعہ غار ثور کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم, جب آپ کے آنسو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرے پر گرتے ہیں, آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. پوچھے صدیق کیا وجہ ہے, کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو, کیونکہ اہل و عیال کیسے رو رہے ہو؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میری آل اولاد سب باپر, میری آل اولاد سب باپر قربان. کیونکہ اس غار پر آپ کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ ابن ابوبکر, سارا دن مکہ میں رہتے ہیں, رات ڈھل جاتی رات میں. اس وقت یہ شہر سارا نہیں تھا. علماء فرماتے اس وقت یہ جتنا ماشاءاللہ مسجد الحرام ہے یا مسپل ہے یہی شہر مکہ تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. تو اس وقت میں رات کو آنا آسان تو نہیں تھا, مشکل تھا. لیکن دیکھیں محبت کے لیے آگے مشکل نہیں دیکھی جاتی. آپ رات میں مکہ والے کو فیصلہ کرتے تو خبر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. آپ کی شہزادی, آپ کی بیٹی اسماء بنت ابوبکر. اب دیکھیں گھر کا عالم یہ ہے, گھر کے اندر کوئی برتن نہیں ہے, وہ ٹیفن نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنا ہی دوپٹہ پکڑا, اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے کے ساتھ پانی کا مشکیزہ باندھا, ایک ٹکڑے کے ساتھ کھانا باندھا, اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو آگے سے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو 2 پٹوں والی دعا فرمائی, 2 پٹوں والی دعا فرمائی, ذات الناقتین, 2 پٹوں والی. تو پوری زندگی 2 پٹوں والی مشہور ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی مٹی میں بیٹھے تھے, تو کریم آقا علیہ السلام ابو تراب کے لک سے پکارا, پوری زندگی ابو تراب لک سے پکارا جاتے رہے. میرے محترم, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آل اولاد سب پر آپ پر قربان. الحمدللہ میدان عرفات بھی شروع ہو چکا ہے. آپ کی سیدھے ہاتھ کی طرف بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے. ان بورڈوں کے اوپر 2 زبانوں میں لکھا ہوا ہے بدایہ عرفات, عرفات سٹارٹ ہے. تو الحمدللہ حجاج کرم بورڈوں کو دیکھ کر عرفات کی حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. بس تھوڑا سا واقعہ رہ گیا, اب توجہ کیجیے گا. تو جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم حکم فرمائے صدیق پاؤں ہٹاؤ, جب پاؤں ہٹائے گئے تو وہاں سے سانپ باہر نکلا. جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر زخم تھا, اسی زخم پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنا لوہابت ہے اس زخم پر لگایا. کریم آقا علیہ السلام کا لگانا تھا, آپ کے پورے جسم کے اندر زہر درد ختم ہو جاتا ہے. یہ تھی لوہاب دہن کی برکت. تو الحمدللہ ہم لوہاب دہن کی برکتیں علماء سے سنی بھی ہے, آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ کریم آقا علیہ السلام تو اتنا عرصہ ہو چکا ہے. لیکن آج الحمدللہ شہر مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 2-3 کنویں بہت مشہور و معروف ہیں. ایک نام ہے بحر شفا, بحر شفا والا پانی. تو وہاں پر آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہاتھ میں آپ زمزم پکڑ لیں, ایک ہاتھ میں بحر شفا پکڑ لیں, ذائقے میں فرق نہیں آئے گا, لیکن اس کی برکتیں الگ ہیں, اس کی برکتیں الگ ہیں. تو دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو غار ثور کی برکتیں نصیب فرمائے. تمام زائرین کرام تلبیہ پڑھتے ہوئے اس میدان عرفات کے اندر داخل ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا, جس جگہ سے ہم گزرے ہیں یہ میٹرو کا اسٹیشن ہے, میدان عرفات کا اسٹیشن ہے, اسے عربی میں محطہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چاروں اطراف آپ کی رائٹ سائڈ پر, لیفٹ سائڈ کی طرف, فرنٹ کی جانب, بیک سائڈ کی سارا کا سارا میدان عرفات ہے. ماشاءاللہ حاجیوں کے خیمے
लग रहे हैं ना। इन्हीं खैमों के अंदर हाजी माशाल्लाह 9 ज़िलहज को, कौन सी तारीख, 9 ज़िलहज को इस खैमों के अंदर हुजाजे कराम सिर्फ एक दिन, कितने दिन, और 2 नमाजों के लिए इस मैदान अरफात के अंदर यहाँ पर आते हैं। आज तो हमारी गाड़ी यहाँ से बड़ी तेजी से गुजर रही है। जब 9 ज़िलहज का दिन होता है फिर यहाँ से पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिलती। मेरे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह ये वही मैदान अरफात है। इस अरफात के अंदर हाजी एहराम बांध के अरफात के अंदर पहुंच गए, उलमा फरमाते वो हाजी हो जाता है। लेकिन हमारे फ्रंट पे 3-4 माशाल्लाह एहराम तो बांधा हुआ है, लेकिन ये हाजी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए आप बताइएगा, क्योंकि 9 ज़िलहज का दिन अभी तक नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल की बारगाह में अल्लाह ताला हम सबको 9 ज़िलहज को हर साल हज के साथ नसीब फरमाए, क्योंकि उसकी रहमत वसी है। उसकी रहमत बिल्कुल ज़्यादा मांगे, थोड़ा ना मांगे। वो जब कर्म करता है तो ये नहीं देखता ये फ़कीर है या गरीब है, तो सब पर ही कर्म कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको हर साल हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह 9 ज़िलहज को क्या वो रहमतें होती हैं, हाजियों पर बरस रही होती हैं, क्या वो रौनकी होती हैं। आपने वीडियो से ये भी देखा होगा, हाजियों से भी सुना होगा। ये अरफात आपको ऐसे लगता है जैसे एक सफ़ेद चादर बिछी होती है, हर तरफ ही हाजी हाजी माशाल्लाह। कुछ तलबिया पढ़ रहे हैं, कुछ जिक्र कर रहे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करते हैं। मेरे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने बस उसकी रहमत पर उम्मीद रखी, वो ज़रूर कर्म करेगा। वो करीम जो है वो ज़रूर फजल करेगा। तो इंशाअल्लाह हम भी वो ज़रूर दिन देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुना करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवस्सुल से हम भी कोशिश करते हैं हर साल हज की सआदत पा रहे और इंशाअल्लाह पाते रहेंगे आपकी दुआओं के तवस्सुल से। लेकिन ये माशाअल्लाह आपकी दुआएं हैं जो माशाअल्लाह हर वक्त दुआओं से नवाजते रहते हैं, क्योंकि उलमा फरमाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उम्र वाले किसी के लिए दुआ भी करें कि दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। करेंगे ना सबके लिए, पूरे उम्मत मुहम्मदिया के लिए करें और बिलखसूस हमारे पाकिस्तान के लिए करें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अच्छा नेक हुक्मरान अता फरमा दे, वो इल्म वाला हो, वो साहिब इल्म हो, वो मोहब्बत वाला हो, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा वाला हो। क्योंकि देखिए ये कलमा के नाम पर बना है। किस पर नाम पर बना है? कलमा के नाम पर पड़ा है। दुआ करे अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हर चीज़ की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे मोहतरम हमारी गाड़ी जिस जगह पर खड़ी है